Hello everyone, good evening. Welcome to Q&A class. My name is Dr. Meghna Garg and I'm biology faculty at Q&A. Students, I have several years of experience in guiding the students for various competitive examinations and also making them ready for their board as well as CBSE preparations. So before we begin the class, please confirm whether am I audible or not. Yes, ma'am, you're audible. Okay, Shubhajit, thank you for responding. So how are you, Shubhajit? Fine, ma'am. Okay, so in today's class, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. That's the first chapter of class 12. So, Shubhajit, see, basically, you are aiming for NEET, okay? And NEET examination comprises Ma'am, 50% of I will biology. join back with the 5 minutes. Huh? This is an important call. Yes, ma'am, I'm back. Okay, Shubhajit, so let's begin the class. So, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. Already in your class, I had started this particular chapter. So, आज की क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीवियस क्लास का जो हमने क्लास 11 से रिलेटेड आपको ब्रिज कोर्स क्लास में कराया था उस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग आगे मूव करेंगे बिकॉज नाउ वी हैव टू मूव अहेड विद क्लास 12th ऑल्सो ओके नाउ the topic which I have chosen for today's class would be the development of male gametophyte. Okay. Now moving ahead. Okay. Yes, Shubhajit. Any problem? No, no problem, ma'am. Okay. Okay. So what are the prerequisites? What prior knowledge do you need before beginning this particular part? So you should have the idea about various parts of the flower. Okay. And apart from the Oh, various parts like calyx, corolla, androecium, and gynoecium. I think you are aware of these terms. yes, ma'am. ओके बाकी का हम जो है आज की क्लास में ही कवर करेंगे प्रीवियस ईयर वेटेज देखो तो 2018 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अलावा भी अगर आप बात करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये कवर करता है क्योंकि रिपीटेटिवली इससे ऑल्टरनेट ईयर्स पे आप कह सकते हो रिपीटेटिवली इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट से कई बार क्या होता है ना क्वेश्चंस को मिक्स करके क्लब करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आउटलाइन देखते Okay, हैं ma'am. तो आज की क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा और उसके अलावा मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगी पॉलन ग्रेन्स की और उनकी वायबिलिटी के बारे में ठीक है नाउ लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर नाउ इफ यू सी द फ्लावर वेट प्लीज यस वेट प्लीज Okay, ma'am. Okay, so now if you see the various parts of the flower, the various parts of the flower are obviously the first part would be calyx, then it would be Yeah, corolla, ma'am. androecium, and then it would be gynoecium. Thank- Yes? Yes, ma'am. Wait, I don't know why pen is not working. Yes, now it has come. Yes. So see, flower. The first part is calyx. Calyx. कैलिक्स क्या होता है बच्चे कैलिक्स जो है जब हम सेपल्स को यूनाइट करते हैं तब हम उसको कैलिक्स बोलते हैं ठीक है अब सेपल्स क्या होते हैं सेपल्स छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो कि फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट होती हैं तो यहां से अब आप देख सकते हो ये छोटी सी ग्रीन कलर की आपको लीफ दिख रही है दिस इज Yes, अ ma'am. सेपल ठीक है यस दिस इज अ सेपल इन्हीं सेपल के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं कैलिक्स बोल देते हैं द नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला ठीक है कोरोला क्या होता है कोरोला पेटल्स के कलेक्शन को बोलते हैं तो जो भी फ्लावर है जो आप स्टडी कर रहे हो उस फ्लावर में जितनी भी पेटल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कंबाइन करके कोरोला बोलते हैं तो अब यहां से आपको ये येलो कलर की इसकी ब्राइट पेटल्स दिखाई दे रही हैं Yes, ठीक है ma'am. दीज आर व्हाट दीज आर योर पेटल्स एंड द पेटल्स कलेक्टिवली फॉर्म कोरोला द थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम Androecium basically refers to the male reproductive part of the flower. Now,
flower is basically the reproductive organ of the plant. And in the flower, which reproductive organ is representing male? That is your androecium. So particularly androecium is represented by stamens. By what? Stamen. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का एक लॉन्ग ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस, Yes, and it ma'am. is ending with two lobes like this. So this Yes, is ma'am. what? This is your stamen. This entire structure, this is your stamen. Similarly, this is your stamen. This entire structure, this is your stamen. Now comes the fourth part, which is gynoecium. So gynoecium represents the female reproductive part or female part of the flower, and gynoecium is represented by pistil or carpel. Okay, pistil or carpel. Now see from here, this is your pistil or carpel. Okay, now this pistil or carpel, you can see from here, it has three parts. This top portion, which is receptive portion, this is stigma. ये जो मिडिल elongated portion होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, एंड द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज ओवरी. ठीक है, इसी ओवरी के अंदर आपकी प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, दिस इज योर प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं आपके ओव्यूल्स. ठीक है, तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम. गॉट इट? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब स्टेमन का स्ट्रक्चर मैंने क्यों इलैबोरेट करके नहीं बताया, क्योंकि स्टेमन का स्ट्रक्चर अब हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. नाउ सी, when we look at the structure of stamen, the stamen has three parts: filament, anther, and connective. Now see this long slender structure, this long tube like structure, this is called as filament. So you can see from here in the flower diagram, this is its filament of the stamen. Now attached to the filament, so now see the lower end of the filament. The filament is attached to the thalamus. The filament is attached to the thalamus. Thalamus serves as the base of the flower. Okay. So Okay, the ma'am. thalamus serves as the base of the flower. इसी से filament आके attach हो गया. अब फिलामेंट के अपोजिट एंड यानी फिलामेंट के दूसरे एंड पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर दो एंथर लोब्स प्रेजेंट है. दीज आर टू एंथर लोब्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक एंथर की लोब ये हो गई और दूसरी एंथर की लोब ये हो गई. नाउ बिटवीन दीज टू एंथर लोब्स, देखो किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने के लिए एक तरीके से बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा. इन अ सिमिलर मैनर इन बिटवीन दीज टू एंथर लोब्स यू हैव कनेक्टिव प्रेजेंट, जो कि इन दोनों एंथर लोब्स को कंबाइन करके रख रहा है. गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं एंथर के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखती हूं, ठीक है, नाउ सपोज दिस इज माय एंथर. ओके, नाउ इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, कंसिडर दिस एज द एंथर लोब एंड दिस लोअर पोर्शन एज द फिलामेंट. ओके, this is filament and this is anther lobe. Now what I am doing, I am taking a cross section like this. I am taking a cross section like this. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so I am taking a cross section like this. When I am taking a cross section like this, ये portion अलग हो गया. अब what I am doing, I am looking into the structure कि क्या है उसका internal anatomy. ठीक है, तो तब मुझे ये पता चला कि basically anther के पास दो लोब्स होती हैं. ये तो हमें पहले ही पता था, तो उसके बिहाफ पे एंथर को हम बाई लोब्ड तो पहले ही बोल देते हैं, बाई लोब्ड, बिकॉज देयर आर टू लोब्स ऑफ एंथर प्रेजेंट. अब जब हम उसके अंदर देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर हर लोब में, नाउ दिस इज वन लोब ऑफ एंथर. Okay, this is one lobe of anther per se, and this is second lobe of anther. In each lobe of the anther, you have two cavities present. Basically, NCERT में anther के बारे में ये लिखा हुआ है कि that in each lobe of the anther, you have
टू थीका प्रेजेंट। थीका जो है हम लोग मेम्ब्रेन के लिए भी टर्म यूज करते हैं, बट एज टू आर अंडरस्टैंडिंग दे वांटेड टू से दैट इन ईच लोब ऑफ द एंथर देयर आर टू कैविटीज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि फिर उन्होंने उसको लिख रखा है दैट द टू थीका दे आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये रन भी कर रहा होता है बिटवीन द टू कैविटीज। सो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दैट द एंथर इज डाइथीकस, यानी टू थीका आर प्रेजेंट। गॉट इट? समझ में आया शुभजीत? यस मैम। ओके, अब दो लोब्स हो गई, दो लोब्स के अंदर आपकी दो दो कैविटीज थी। अब देखते हैं इन कैविटीज में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हर एंथर लोब में, इन ईच एंथर लोब देयर आर टू माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। What are microsporangia? Microsporangia are basically the future pollen sacs. Okay, they are pollen sacs. Inside them only the pollen grains would be formed. तो यहां पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गया, ये हो गया। हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया थे। तो यहां से टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए एक एंथर के अंदर? 4। 4 है ना। तो एक एंथर लोब के अंदर 2 हुए, दो के अंदर 4 हो गए। सो दैट्स व्हाई इन दिस कंप्लीट एंथर यू हैव टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि 4 pollen sacs और 4 microsporangia are present. Got it? यस मैम। तीनों पॉइंट्स लिख लिए, बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब देखो यहां पर और जूम्ड इन सेक्शन दिखा रखा है। ये एक एंथर लोब हो गई और ये दूसरी एंथर लोब हो गई। ठीक है, दोनों लोब्स में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब फर्दर अगर आप एंथर की वॉल्स के बारे में बात करेंगे तो एंथर की वॉल्स हम लोग नेक्स्ट आगे की स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एंथर वॉल। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन शुभजीत। Bilobe, Dithecus, tetrasporangiate. Very good. So what would be the option? Option C, ma'am. Very good. So the correct answer would be option number C. Yes, so it would be bilobe, dithecus and tetrasporangiate. Very good. Now, moving ahead, let's see the functions of the wall layers or what are the wall layers which are present in the anther. तो अब देखो हमने यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यानी इसमें हम एंथर की भी वॉल को कवर कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन में, और हमारी ये अंदर जो स्पोरेंजिया की लेयर्स है, माइक्रोस्पोरेंजिया की, उनकी लेयर्स को हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखो ये आउटर लेयर, this is epidermis, ये जो लेयर मैं बना रही हूँ ना, so now I'm just drawing it like this. This is your epidermis. Okay, this is your epidermis. The outer layer is epidermis. Epidermis के अंदर की तरफ में प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम। यूजुअली एपिडर्मिस भी एक सिंगल लेयर होती है, एंडोथीशियम भी एक सिंगल लेयर होती है। तो अब इसके नीचे हमारे पास क्या आ गई? एंडोथीशियम। ठीक है, तो ये एंडोथीशियम को अब मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज योर एंडोथीशियम। नाउ इनसाइड एंडोथीशियम 2 to 3 middle layers are present, यानी you have 2 to 3 और several middle layers present. तो यहाँ पर middle layers more than 1 करके हम लिख देते हैं। ठीक है, अब मिडिल लेयर के अंदर की तरफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर प्रेजेंट होती है विच इज योर टेपेटम। ठीक है, सो यू कैन सी द लार्ज सेल्स ऑफ द टेपेटम विच इज प्रेजेंट, दीज आर टेपेटम। ओके, टेपेटम। अब जब हम इन लेयर्स को एनालाइज कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो प्लांट के प्लॉइडी लेवल के इक्विवेलेंट ही होता है। यानी कि अगर आपका प्लांट डिप्लॉइड है तो ये उन्हीं सेल्स से मिलकर के बना है ये लेयर्स, तो ये वही प्लॉइडी लेवल शो करेंगी।
ठीक है। प्लॉइडी लेवल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि बेसिकली द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन दी सेल। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट, फिर दूसरा 23 क्रोमोसोम्स का सेम सेट। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे एग या ओवम होते हैं हम ह्यूमंस के, वो हेप्लॉइड होते हैं, उनमें केवल 23 और 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्लॉइडी लेवल बच्चे देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिडर्मिस का प्लॉइडी लेवल 2 एंड डिप्लॉयड ही रहता है, एंडोथीशियम का प्लॉइडी लेवल 2 एंड डिप्लॉयड ही रहेगा, मिडिल लेयर का प्लॉइडी लेवल भी 2 एंड डिप्लॉयड ही रहेगा। लेकिन जो टेपिटम की लेयर होती है, ये टेपिटम की लेयर नरिशमेंट को प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को। तो जो भी पॉलन ग्रेन्स अब यहाँ पर अंदर बन रहे होते हैं इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, ये टेपिटम उसके बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में प्रेजेंट है लेयर, तो टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो टेपिटम कैसे बनती है, देखो, दो सेल्स मिलकर के एक साथ फ्यूज कर गए, या फिर सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे थे, उनमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जो है बाकी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, लाइकवाइज दैट। तो यहाँ पर टेपिटम के जो सेल्स होते हैं वो जो है बाई न्यूक्लिएट यूजुअली या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में भी पाई जाते हैं, यानी एक एक सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस है, लाइकवाइज दिस, लाइक आई एम ड्रॉइंग यू हियर। ठीक है, सो दीज आर बाई न्यूक्लिएट कंडीशंस। तो यहां पर देखो, प्लॉइडी लेवल अगर आपसे पूछा जाता है तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप आंसर दोगे। शुभजीत, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आंसर दोगे। देखो, आपने क्लास 11th में फंजाई पढ़ी थी? यस मैम। फंजाई में एक डाइकैरियन स्टेज पढ़ी जाती है, ठीक है, यानी उसमें भी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, है ना? यस मैम। वहां पर यूजुअली हम कैसे दिखाते हैं, n+n कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो हम n+n भी बोलते हैं। लेकिन अगर पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाता है तो आप इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या लिख सकते हो, इसका प्लॉइडी लेवल कुछ भी हो सकता है, इसका प्लॉइडी लेवल 2n, 3n, 4n, कितना भी हो सकता है इसका प्लॉइडी लेवल, डिपेंडिंग उस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं। अगर दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, मतलब अगर दो न्यूक्लियस हैं या तीन न्यूक्लियस हैं, चार न्यूक्लियस है, उस हिसाब से कंसिडरिंग एक जो आप न्यूक्लियस है उसको आप क्या प्लॉइडी लेवल दे रहे हो। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हो गया अब, हाँ सॉरी, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टेपिटम के अंदर। ठीक है, टेपिटम के अंदर यहां पर, सो आई एम नाउ ड्रॉइंग इट लाइक दिस, इनसाइड द टेपिटम यू हैव अ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट एंड दैट मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल केपेबल होता है पॉलन ग्रेन बनाने के, इसीलिए यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को, एक एक सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। गॉट इट? यस मैम। मैम ठीक है, हम टोटल माइक्रोस्कोपिक स्केल्स को, मदर सेल्स को कंबाइन करने के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हैं। yes, yes, so the total mass of the microspore mother cells, okay, that we are calling it as sporogenous tissue. Okay, got ma'am. it? Yes, Now, ma'am. so now if we look at the functions of the cell wall layers, function की बात करते हैं, तो देखो एपिडर्मिस, the outer layer, ये प्रोटेक्टिव है फंक्शन में। एपिडर्मिस यूजुअली कहीं कहीं भी होती है, वो प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स को। नेक्स्ट यू हैव एंडोथीशियम। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों लेयर्स एंथर के डेहेसेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ये बोलती है दैट दीज थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन एंथर डेहेसेंस। एंथर डेहेसेंस का मतलब क्या होता है कि जब एंथर बर्स्ट करेगा और उसके अंदर से ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, दीज आर पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होंगे एंथर के बर्स्ट होने से, उसे हम बोलते हैं एंथर डेहेसेंस। तो यहाँ पर
पर्टिकुलरली एपिडर्मिस का तो हमने प्रोटेक्टिव इन फंक्शन देख लिया, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का फंक्शन और रोल ज्यादा से ज्यादा एंथर के डिहेसेंस में रहता है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल Okay. लेयर का एक और फंक्शन यहाँ पर दे रखा है विच इज पॉलन मैच्योरेशन, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस, these 3 layers are involved in anther dehiscence, that would be sufficient. Got it? Yes, ma'am. नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो टेपिटम देखो उसके पास इतने सारे न्यूक्लियस हैं, तो एक चीज तो हमने अभी बोल दी कि भाई टेपिटम के पास इतने सारे न्यूक्लियस हैं, तो ऑब्वियसली टेपिटम क्या कर रहा होगा, टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। Yes, ma'am. है ना, तो टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा पॉलन ग्रेन्स को। सो यस, इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। उसके अलावा टेपिटम जो है पॉलन को यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके अलावा टेपिटम जो है वो एक्साइन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। एक्साइन क्या होती है, आउटर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा टेपिटम जो है वो कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करता है। कैलेज का क्या रोल होता है, तो ये जब मैं अभी आपको आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताऊंगी तब समझाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा Okay. प्लीज नोट कि जो टेपिटम के सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ शुभजीत, देयर इज वन होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूं कि हमारा एक ह्यूमन का सेल है, ठीक है, हमारा एक ह्यूमन का सेल है, उस ह्यूमन के सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है, देन व्हाट वुड बी इट्स प्लॉइडी लेवल, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, अभी इसको मत सॉल्व करो, जस्ट गो बैक होम एंड सिट एंड रियलाइज। इसको मैं लिंक करूंगी टेपिटम के प्लॉइडी लेवल के साथ, जो हमने यहाँ प्लॉइडी लेवल लिखे हैं 2n 3n 4n, ये इनमें से क्या क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसके आंसर पे आ जाओगे तो आप उसका आंसर भी सॉल्व कर लोगे। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये होमवर्क लेके रखना। नाउ टेपिटल के सेल्स बाई न्यूक्लिएट कैसे हुए होंगे, ये एक एनसीईआरटी का ही अगेन सवाल पूछ रखा है। देखो बच्चे, आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th में पढ़ा Yes, ma'am. है ना। अब देखो, जब हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस इनिशियली डिवाइड करता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो सबसे पहले एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर इस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और फिर इवेंचुअली इस तरीके से Correct, ma'am. 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर इस साइकिल को मैं यहां पर ही रोक दूं यहाँ पर, यानी कि मैं ये बोलूं कि केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो क्या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी? Yes, ma'am. ओके, तो एक तरीके से तो ये बन सकती है। दूसरा तरीका क्या है भाई, 2 सेल्स थे और ये 2 Fuse सेल्स हो- आपस में वेरी गुड फ्यूज कर गए, ठीक है, तो भी जो है हमारे पास बाई न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। उसके अलावा एक और टर्म होती है रेस्टिट्यूशन माइटोसिस, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, तो ये नहीं करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। गॉट इट? क्लियर शुभजीत, एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, now solve this question. The ploidy level of, yes, Ma'am, epidermis is 2n. epidermis is 2n. Okay, endothelium 2n. okay, next, Middle layer is also 2n. very good. Tapetum may be more than, ma'am, 2n or more than 2n. Very good. You have got the correct answer, 2n or maybe more than 2n. ठीक है, next. And microspore mother cell is 1n. It's haploid. No, microspore mother cell would be 2n only. Why? See, मैंने आपको ये बोला स्पोरोजेनस टिश्यू
का हर सेल हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है। इसका प्लॉइडी लेवल इनिशियली 2n ही रहेगा। जब इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो कि प्लॉइडी लेवल n होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट इज मदर, अभी तक इसने डिवाइड नहीं किया है, मियोटिक डिवीजन नहीं किया है, तो यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल 2n ही रहेगा। गॉट इट? यस मैम। ओके अगर मैं वहीं पर बोलूं माइक्रोस्पोर का पॉलन प्लॉइडी लेवल क्या है, तो आप एन लिखोगे हेप्लॉइड। अभी मैं आपको नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही पढ़ाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? यस मैम। ओके नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो नाउ शुभजीत, क्विकली टेल मी द लेयर्स ऑफ द एंथर स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एपिडर्मिस, वेरी गुड, एंडोथीशियम, वेरी गुड, मिडिल लेयर, वेरी गुड, टिपेटम, वेरी गुड। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की जगह हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? उसका जो मास है, जो मतलब जो वो कंबाइंड सेल्स है, हम उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, सो एट द सेंटर ऑफ ईच, सो सपोज दिस वाज योर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम था। अब इसके सेंटर में ये जो मास ऑफ सेल्स है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू। ठीक है, और ये क्या था? ये वाला बाहर वाला, ये था आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अब देखो पॉलन सैक, यही माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन सैक। ठीक है, ये पॉलन सैक के अंदर सबसे पहले जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ होगा, हम जो देख रहे हैं अभी मेंथर में, जब हमने क्रॉस सेक्शन लेके देखा तो हमें सीधे बीच में उसमें एक मास ऑफ सेल्स दिख रहा है। लेकिन जब ये प्लांट बड़ा हो रहा होगा, कैसे उसमें फॉर्मेशन हुआ होगा उस स्पोरोजिनस टिश्यू का, तो यहां पर उसको दिखाया गया है कि पॉलन सैक में सबसे पहले एक आर्कीस्पोरियल सेल बनता है। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है इनटू पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। यही स्पोरोजिनस सेल का जो मास बन गया, इसी को हम बोल रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब एनसीईआरटी में ये चीजें मेंशन्ड नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली बिगिन विद दिस स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो कहां से हम शुरू करेंगे? दैट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम you have a mass of cells present which is called as sporogenous tissue. Now each cell of the sporogenous tissue acts as pollen mother cell या फिर microspore mother cell. So all the cells, yes, my pollen mother cell और microspore mother cell. अब हमने यहां से एक सेल को उठा लिया, ठीक है, ये एक हमने सेल को उठा लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, और ये इसके बीच का न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले इसमें मियोटिक डिवीजन होना है, क्योंकि गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है। हमें पता है कि मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 हुआ, सबसे पहले 2 सेल्स बने, फिर मियोसिस 2 हुआ, फिर 4 सेल्स बन गए। तो यानी एक एमएमसी के मियोसिस से टोटल हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अब सी फ्रॉम हेयर, इनिशियली जो ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। पॉलन टेट्राड भी बोल सकते हैं, बट प्रेफर इट कॉलिंग एज माइक्रोस्पोर टेट्राड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, सो ये क्या हुआ? माइक्रोस्पोर
टेट्राड, ठीक है। यहां पर देखो ये जो इन सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स को कौन कंबाइन कर रहा है? तो ये होती है कैलोज, ठीक है। अब देखो यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू, सो नाउ आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस हियर। Okay, now suppose this was your sporogenous tissue and inside, sorry, this was your microsporangium and this was your sporogenous tissue. Sporogenous tissue के ठीक बाहर आपके पास कौन सी लेयर होगी? You will have tapetum present. Tapetum होगी ये जो ग्रीन लेयर मैंने आपको बताई है, यस मैम, है ना। और इसी में अंदर ये जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू था, यस, ये जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू था, इसी में ही अंदर आपके अब ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर टेपेटम सिक्रीट करता है कैलेज एंजाइम। टेपेटम क्या सिक्रीट कर रहा है? कैलेज एंजाइम। और यही कैलेज जो है इस कैलोज वॉल को डिग्रेड करती है, डाइजेस्ट करती है, जिसके की वजह से इवेंचुअली आपके पास 4 माइक्रोस्पोर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द कैलेज बाय कैलोज बाय द टेपेटम, 4 माइक्रोस्पोर्स वुड बी लिबरेटेड, और यही 4 माइक्रोस्पोर्स आगे चल के 4 पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। गॉट इट? गॉट इट शुभजीत? यस मैम। ठीक है, तो जैसे जैसे एंथर मेच्योर हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कैलेज उसका डाइजेस्ट हो रहा है, उसी टाइम पे ही माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन शुभजीत। पोटेंशियल पॉलन मदद से मैम ऑप्शन ए। Okay, so let's, yes, very good. The correct answer is option number A. Well done, Shubhajit. Next question. मैम ऑप्शन डी। Very good. So the correct answer is option number D, 16. Any doubts? नो मैम। Okay. Now, moving ahead. Acha, one more question. मैम ऑप्शन सी। Yes. अब यहां पर अभी तक मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट नहीं बताया था, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स को ही हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अच्छा, आपने क्लास 11th पढ़ी? यस मैम। उसमें हमने प्लांट किंगडम पढ़ा। यस मैम। वहां पर जगह जगह टर्म आती है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? गेमीट बियरिंग या गेमीट फॉर्मिंग, ठीक है। यहां पर पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही आपके फर्दर मेल गेमीट्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को मेल गेमीटोफाइट कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स में। अगर आप रिकॉल करोगे क्लास 11th को, वहां पर ये बोला जाता है कि एंजियोस्पर्म्स में गेमेटोफिटिक जनरेशन रिड्यूस हो जाती है ना। तो वहां पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन्स। द मेल गेमेटोफाइट इज represented by pollen grains. Why? Because eventually in pollen grain you will find male gametes. pollen grain के अंदर ही male gametes present होते हैं। Got it? यस मैम। Now let's see the structure of pollen grain. तो देखो pollen grain जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। pollen grain मेल गेमेटोफाइट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार ये क्वेश्चन PYQ पूछा जा चुका है, सो हाईलाइट दिस। ओके, नेक्स्ट, pollen जो है यूनिसेल्यूलर, यूनिन्यूक्लिएट, हेप्लॉइड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। पॉलन ग्रेन बना कैसा है? पॉलन ग्रेन हम बोल किसे रहे? माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो गया उसी को तो पॉलन ग्रेन बोल रहे हो। माइक्रोस्पोर कैसे बना था? मियोसिस से बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल के। तो माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल क्या था? हेप्लॉइड। तो सिमिलरली पॉलन ग्रेन का भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा? हेप्लॉइड।
ठीक है, तो यहां पर ये हेप्लॉइड है यानी इसका प्लॉइडी लेवल n है. नाउ दिस गिव्स राइज टू फर्दर मेल गेमीट्स. अब देखो पॉलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं. पॉलन ग्रेन में जो ये आपको आउटर लेयर दिख रही है, दिस आउटर लेयर विच इज शार्प लेयर, वेरी टफ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन. एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज्यादा टफ मटेरियल होता है. अभी तक कोई भी एसिड, कोई भी एंजाइम ऐसा नेचर में नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके. ठीक है, अब देखो ये आपका पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन की ये एक आउटर लेयर में बना रही हूं. दिस इज इट्स एक्साइन. आई एम सेइंग कि ये एग्जाइन बहुत ज्यादा टफ थिक लेयर है, इसे कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन इस पॉलन ग्रेन से फर्दर आगे एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कराना होता है. क्यों जर्मिनेट कराना है? क्योंकि इसी के अंदर अब आपके मेल गेमीट प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो उन्हें तो बाहर आपको निकालना पड़ेगा. तो यहां पर क्या होता है कि बीच बीच में, ठीक है, सो नाउ आई विल ड्रॉ इट इन अनदर मैनर, बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दीज पोर्स वेयर दिस स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर. ठीक है, सो एट द एरियाज ऑफ जर्म पोर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट और इन्हीं जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है. गॉट इट? यस मैम. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने कर लिए. नाउ इसी पॉलन स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो पैटर्न्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के वो बहुत ही कलरफुल और डिफरेंट डिजाइन्स में अवेलेबल होता है. नेक्स्ट, इनर टू द इंटाइन लेयर, इंटाइन के अंदर एक और लेयर, सॉरी एक्साइन के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है. दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन. ठीक है, इंटाइन एक सिंपल सी लेयर है, किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी हुई होती है. गॉट इट? Now, Yes, Shubhajit, ma'am. are you writing? Yes, ma'am. Okay. Now, pollen grains are well preserved as fossils. Why? Ma'am, because of the hard outer cover. Called as? Exine में ऐसा कुछ था. हो कुछ था क्या मतलब? If you are writing, that means you should remember this. That means you are not Ma'am, writing. EXINE. Exine, yes. So exine is made up of? Ma'am, that. अरे. No. Ma'am, that. Shubhajit, you are not writing. Shubhajit, you are not writing. Start writing. Ma'am, I can't pronounce it properly. It's sporopollenin ऐसा कुछ है. Yes, sporopollenin. You have pronounced it absolutely correct. Sporopollenin. Okay. तो देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आपको केवल ये नहीं लिखना है इट इज मेड अप ऑफ हार्ड आउटर कवर. You have to say that the hard outer cover is present called as exine, which is made up of sporopollenin, and no enzyme has been found yet or no strong acid has been found yet which can digest it. That's why it remains preserved for years and years. Okay, got it? Okay. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. अब हम ये बोल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर ही आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होता है. तो देखो यहां पर ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर आपको दिखा रखा है. ओके, सो दिस इज माइक्रोस्पोर, और सॉरी नाउ आई विल कॉल इट एज पॉलन ग्रेन रादर देन माइक्रोस्पोर. ठीक है, नाउ दिस इज वन पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के अंदर ये एक न्यूक्लियस है. ठीक है, और हेप्लॉइड है ये नेचर में. अब देखो इवेंचुअली क्या है, यहाँ पर ये हो गया आपका न्यूक्लियस. इसके अलावा पॉलन के साइटोप्लाज्म में आपके पास वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर देखो ये दो वैक्यूल्स भी दिखा रखे हैं और ये इसका न्यूक्लियस हो गया. इनिशियली इस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, लेकिन जो ये डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक है, यानी कि न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कि एक देखो यहाँ पर देखो एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म हो रहा है. ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है एसिमेट्रिक तरीके से, जिसके की वजह से एक लार्ज न्यूक्लियस बन गया और एक स्मॉल न्यूक्लियस बन गया. तो अब ये लार्ज न्यूक्लियस के आसपास जो है आपका
एक पूरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके एक सेल बन गया विच इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, वहीं पर दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ठीक है, तो यहां पर भी इसका भी अपना एक न्यूक्लियस है और इसका भी अपना एक न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज लार्ज, the cell is also large, and this is small, the cell is also small. Got it? यस मैम। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल बन गया और एक जनरेटिव सेल बन गया। अब वेजिटेटिव सेल का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, सो वेजिटेटिव cell helps in pollen tube formation, whereas the nucleus of the generative cell is involved in fertilization. ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। बट नाउ व्हाट हैपेंस, सी इन 60% of angiosperms, in 60% of angiosperms pollen grain इसी टू सेल्ड स्टेज पे शेड हो जाएगा, यानी कि एक उसमें वेजिटेटिव सेल है और एक उसमें जनरेटिव सेल है। ठीक है, लेकिन 40% ऑफ द केसेस में यहीं पर ही जनरेटिव सेल दो में डिवाइड कर जाएगा। तो अब इवेंचुअली आपको कंडीशन कैसी देखने के लिए मिलेगी, एक आपके पास वेजिटेटिव सेल हो गया और यहां पर इस तरीके से आपको दो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। सो इन 40% of the angiosperms, the pollen grain is shed at 3-celled stage. Got it? यस मैम। अब देखो, जो ये 2-celled स्टेज पे भी पॉलन ग्रेन शेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलन ग्रेन अगर शेड हो गया तो आगे चल के उसमें एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव ही रहेगा। नो, जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा वहां पर भी तब ये जनरेटिव सेल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो इवेंचुअली जनरेटिव सेल को दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस करने ही करने हैं, लेकिन कई स्टेजेस में वो पहले ही हो जाता है, पॉलन ग्रेन की शेडिंग से पहले, कई स्टेजेस में वो शेडिंग के बाद होता है। Got it? Yes, ma'am. So now solve this question. Option number A क्या होगा बताना? Option number A would will be vacuoles. Very good. That would be vacuoles. Yes. ठीक है. Next, B would be nucleus. Nucleus. Yes. C क्या बना? Asymmetric spindle. Yes. ठीक है. So asymmetric spindle. Yes. So correct answer क्या होगा इसका? D vegetative. Same है. No, D. No. See this? Oh, ma'am, option D. Option D. Yes, so the correct answer would be option number B. Not all options are same, okay? Now, मैंने तो सारा न्यूक्लियस दिख रहा था। नहीं, now see this. Solve this question. मैम option A. Okay. So the correct answer to this would be 2 mitotic divisions and 1 meiotic. देखो, सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ रह चुका है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर में से अब हम एक माइक्रोस्पोर देख रहे हैं। एक माइक्रोस्पोर का ये न्यूक्लियस था, माइक्रोस्पोर यानी अब हम पॉलन ग्रेन की बात करें, ये न्यूक्लियस है। इसमें सबसे पहले एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कि एक वेजिटेटिव सेल बनता है, एक जनरेटिव सेल। तो ये माइटोसिस 1 हो गया। अब नेक्स्ट, ये मैच्योर कब माना जाएगा? जब ये भी 2 में डिवाइड करेगा, यानी कि अब ये भी 2 में डिवाइड कर गए जनरेटिव सेल। ओके, स्वीट लाइक दिस। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा? 1 meiotic and 2 mitotic divisions. Got it? Yes, ma'am. Now,
just winding up the class now. See, pollen grains जो है एलर्जीज कॉज करते हैं, तो पर्टिकुलरली पार्थेनियम, ठीक है, ये इंडिया में आया एज कंटेमिनेंट ऑफ वीट। तो जब वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था उस टाइम पे पार्थेनियम आ गया, और पार्थेनियम सीवियर एलर्जीज को कॉज करता है। पार्थेनियम को हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन्स केवल हार्म ही नहीं कर सकते, पॉलन ग्रेन्स जो हैं कई बार यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उनके अंदर बहुत सारा स्पोरोपॉलन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, इतना सारा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, न्यूक्लियस सब प्रेजेंट है, so they are rich in nutrients. Next, they can be used as food supplements as well. And कई बार पॉलन को कंज्यूम करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो घोड़े होते हैं, उनको जब रेस हॉर्सेस में दौड़ाना होता है तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज द वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देखो जब पॉलन ग्रेन एक बार रिलीज हो गया नेचर में, तो वो कितने टाइम तक के लिए एक्टिव रहता है, कितने टाइम तक वो अगर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे तो वो एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलन वायबिलिटी। तो राइस और व्हीट में पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट्स तक ही रहती है, 30 मिनट्स के बाद इट वुड बी लॉस्ट। वेयर एज इन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी पॉलन ग्रेन्स में वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। प्लीज रिमेंबर दिस, PYQ रह चुके हैं ये क्वेश्चंस। और पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तब आप उनको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में भी स्टोर करके रख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। गॉट इट? यस मैम। Okay, so now solve this question. I can skip this question. Solve this. मैम 30 मिनट्स। Very good. It would be 30 minutes. तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने एंथर की लेयर्स को पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर भी कवर कर लिया है, और हमने आज की क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमीटोजेनेसिस दोनों पढ़ लिया है। ठीक है, तो घर जाकर के, घर पे ही आप तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगली क्लास में हम लोग पॉलन ग्रेन्स के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, और फिर हम लोग फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर मूव करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। गॉट इट? सो नाउ Shubhajit, I'll show you the platform. Okay, you can go and log into the platform. I practiced. Okay, you know the drill already? Yes, ma'am. Okay, so I'm just assigning you the homework on the platform. Have you got your credentials? Yes, ma'am. So now what you will do, you will go to the dashboard section. I'm giving you the homework. Okay, I'm not asking you to solve the questions right now here in the class, but I'm just giving you the homework. You will go to practice session, custom. Okay, you'll go to the botany section and then go to this sexual reproduction in flowering plants. Yes, new ma'am. topics. Okay, so now you will solve questions from pre-fertilization structure and events. और flower में आपको बहुत सारे questions मिलेंगे from class 11th as well. So you at least need to solve 20 questions from flower. Okay, 20 questions from flower because biology doesn't take much time. 20 questions from flower, जरूरी नहीं है आप उसमें सारे कर पाओ. So revise the concepts from class 11th and then attempt. Then pre-fertilization structure and events, solve at least 20 questions again from this topic as well. क्योंकि यहाँ पर अभी जितना मेल गेमिटोफाइट के स्ट्रक्चर आएंगे, आप चलो 10 ही सॉल्व कर लेना. 10 सॉल्व करना from pre-fertilization structure and events. Got it? Okay, ma'am. Okay, so Shubhajit. Okay, ma'am. Okay, Shubhajit. So I hope you have enjoyed the session. Yes, ma'am. Okay, so see you, Shubhajit, in next class. Okay, so till then, Okay, keep ma'am. studying and stay focused and stay hydrated. Thank you. Bye-bye. See you in next class. Bye, ma'am.